So students, we have dealt with two theorems yesterday. Okay. Today we'll be completing 6 standard derivations. Okay. आज हम लोगों को 6 standard derivations करना है. Yes, are you able to hear me now? Yes, sir. Students, are you able to hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I cannot hear a single voice. Hi, Anna. Yes, sir. Yes, sir. So today we'll be dealing with 6 standard derivations. Standard derivations of inverse trigonometric functions. Before starting this, मेरे ख्याल से आप लोगों को स्टैंडर्ड जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसके ये पता होने चाहिए, क्या बोलते हैं, डोमेन और रेंज पता होना चाहिए. तो एक काम करता हूँ, फर्स्ट आई विल प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ दैट एंड देन आई विल स्टार्ट. सो लेट अस से देयर आर 6. यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे हम, y is equal to the inverse function. यहाँ पे domain and then the principal range. The first is sine inverse x. Y is equal to sine inverse x. Okay. Y equals to, let us say, sine inverse x. Domain मतलब x की values. So it is equal to -1 less than or equal to x less than or equal to 1. और range जो है that is -π/2 less than or equal to y less than or equal to π/2. Second है आपका y is equal to cos inverse x. The domain is same, -1 less than or equal to x less than or equal to 1, but the range is 0 less than or equal to y less than or equal to pi. Third आपका फंक्शन है y is equal to, okay, sec inverse x. अब इसका डोमेन क्या है? इट इज mod of x is greater than or equal to 1, or I can say x is less than or equal to -1. Okay, or x is greater than or equal to +1. Or it can also be written as x belongs to -infinity comma -1 included union 1 comma infinity. Sorry, there is a mistake. Infinity cannot be included, so it has to be a curved bracket, not a rectangular one. ये जितना मैंने लिखा सबका मतलब एक ही है, और इसका डोमेन है 0 less than or equal to y less than or equal to pi, but the value of y cannot be equal to pi/2. Okay. Fourth है y is equal to cosec inverse x. इसका डोमेन भी सेम है, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का सेम है. इसका रेंज है
minus pi by 2 less than or equal to y less than or equal to pi by 2, but y cannot be equal to 0. One value is not present. Then पांचवा है y is equal to tan inverse x. यहां पे x belongs to R और डोमेन है minus pi by 2, sorry, range less than y less than pi by 2. You can see pi by 2 is not inclusive. And the sixth is y is equal to cot inverse x. X belongs to R, 0 less than y less than pi. ये चीज आपको पहले पता होना चाहिए. आई एम श्योर द टर्म्स डोमेन और रेंज आपको पता है. Domain means the values of x for which the function exists, and range means when you put the independent variable, what are the possible values of the function. That is y की possible values जो है वो range और x की जो possible values है वो domain. And remember, it should be a 1-1 onto function. तो हमने domain और range को इस तरह से select किया है कि ये functions 1-1 onto हो जाते हैं. इसमें जो sec inverse का मैंने डोमेन दिया है, आई नो कई बच्चों को ये कंफ्यूजिंग लगता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इसका प्लेन मीनिंग यही है कि वैल्यूज लाई बिटवीन माइनस इंफिनिटी से लेकर -1 एंड 1 से लेकर इंफिनिटी. बीच में जो वैल्यू -1 और 1 के बीच में जो वैल्यू है वो डिस्कार्डेड है, वो डोमेन में इंक्लूड नहीं होता है. ठीक है, इसको लिखने का एक और तरीका है, जैसे कई पॉसिबल तरीके से. तो सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स के सेम डोमेन, रेंज अलग अलग. तो ये जो कंडीशंस है, आप जब कभी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो आपको ये कंडीशंस याद रखना पड़ता है. ओके डियर, ये कंडीशंस आपको याद रखना है ताकि आपसे एग्जाम्पल सॉल्व करते टाइम पे कोई मिस्टेक नहीं हो. फाइन. Anyone having any sort of doubt? वैसे भी I don't know, there's some problem in the audio. I'm not able to hear you people. चलिए, अब फर्स्ट स्टैंडर्ड डेरिवेशन हम करते हैं. स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये, फर्स्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट. इफ y is equal to sin inverse x -1 less than or equal to x less than or equal to 1 minus pi upon 2 less than or equal to y less than or equal to pi by 2, then prove that dy upon dx equals to 1 upon square root of 1 minus x square for mod of x less than 1. Less than 1. Okay? ये इक्वल टू साइन नहीं आएगा यहाँ पे. ठीक है डियर, इक्वल टू नहीं आएगा. इक्वल टू 1 क्यों नहीं आएगा तो वो भी समझ लीजिए आप लोग. अगर इक्वल टू 1 मैं यहां पे लिखता हूं तो 1 - 1 हो जाएगा 0 एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 डज नॉट एग्जिस्ट. दैट्स व्हाई इक्वल टू. वैसे इसका मतलब और इसका मतलब ऑलमोस्ट सेम है, खाली इसमें से इक्वल टू साइन निकाल दो तो ये और ये दोनों एक ही होता है. ओके, अगर मैं यहाँ पे इक्वल लिख दूं तो दिस एंड दिस मीन्स वन एंड द सेम. चलिए अब इसका प्रूफ देख लेते हैं. लेट अस सी द प्रूफ. ओके, नाउ सिंस y is equal to sin inverse x under the condition -1 less than or equal to x less than or equal to 1,
and minus pi by 2 less than or equal to y less than or equal to pi by 2, इसका मतलब है कि x is equal to sin y. अब एक काम करो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y, तो आपको dx अपॉन dy की वैल्यू क्या मिलेगी? sin y का डेरिवेटिव होता है cos y, ठीक है। इस बार आपने y से डिफरेंशिएट किया तो ये कंपोजिट नहीं सिंपल फंक्शन है, ओके। अगर मैं x से डिफरेंशिएट करता तो ये कंपोजिट हो जाता और मुझे dx अपॉन dy फिर से dy अपॉन dx फिर से लिखना पड़ता, ओके। चलिए, तो ये dx अपॉन dy की वैल्यू मुझे क्या मिल गया? cos y। रिमेंबर दिस, हमने डेरिवेटिव किससे किया? विथ रिस्पेक्ट टू y किया, x नहीं किया है, ध्यान रखना। इसीलिए sin y की डेरिवेटिव डायरेक्टली मैंने क्या लिखा? cos y। सो अब ये cos y को अगर मुझे साइन में कन्वर्ट करना तो आई कैन से दिस इज प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ cos square y, that is equal to plus minus square root of cos square y is actually 1 minus sin square y, that is equal to plus minus square root of 1 minus, अब sin y की वैल्यू क्या है? x. Let us say this is statement number 1. तो आपको क्या मिला? dx अपॉन dy की वैल्यू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देख लो, हमने y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये कॉन्सेप्ट को यूज किया, उसका इनवर्स डिफाइन किया। इनवर्स क्यों डिफाइन किया? 1 1 on 2 फंक्शन है, x इक्वल टू साइन y इज द इनवर्स फंक्शन। डेरिवेटिव किया dx अपॉन dy विथ रेस्पेक्ट टू y, साइन y की डेरिवेटिव मिली cos y। इसको मैंने साइन में कन्वर्ट किया फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उसके लिए मैंने प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ। अब आप बोलोगे प्लस माइनस क्यों? तो स्क्वायर रूट की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों है, इसके लिए जब हमने स्क्वायर रूट साइन डाला तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन दोनों आ गए। तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब ये जो sin y है यहाँ पे देख लीजिए, sin y इज इक्वल टू x, तो मैंने यहाँ पे sin y की जगह पे x लिखा, तो मुझे मिला प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। बट अब ये प्लस और माइनस दोनों साइन है या दो में से एक ही है, वो हमको डिसीजन लेना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंटरवल। आप याद रखो, ये माइनस पाई बाय 2 से लेकर प्लस पाई बाय 2 कौन सा क्वाड्रेंट है? ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बट रिमेंबर cos y is positive in minus pi by 2 less than equal to y less than or equal to pi by 2। तो ये जो क्वाड्रेंट नंबर है माइनस 90 से प्लस 90 फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम सब जानते हैं कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसके लिए ये जो माइनस साइन हमने लिखा है वो गलत है। तो दिस आंसर इज गोइंग टू रिमेन ऑलवेज पॉजिटिव एंड दिस इंप्लाइज dx अपॉन dy, तो ये माइनस साइन न लिख के हम सिर्फ लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप सो दिस कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर टू यू पीपल कि फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos इज पॉजिटिव, ओके। तो dx अपॉन dy की वैल्यू आपको ये मिल गया। अब आप याद कीजिए, बाय डेफिनेशन dy by dx इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं 1 अपॉन
dx by dy. That implies dy upon dx equals to 1 upon dx by dy की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट रिमेंबर मॉड ऑफ x शुड बी लेस देन 1, यानी इक्वल टू 1 नहीं लिखना है. इक्वल टू 1 लिखोगे तो ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा. एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इन अलजेब्रा सेज डज नॉट एग्जिस्ट. इसके लिए यहां से मैंने इक्वल टू साइन निकाल दिया एज रिक्वायर्ड. तो जो हमको प्रूफ करना था वो कंप्लीट हो गया एज रिक्वायर्ड. तो आई होप सो यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग. किसी को अगर डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए. No, sir. फाइनली आई हर्ड अ वॉइस. मुझे ऐसा लगा कि कोई है ही नहीं इधर. चलिए, तो ध्यान से देख लेना. ये जो कॉन्सेप्ट है आपको यही यूज करके एग्जैक्टली अगर cos इनवर्स x है उसकी डेरिवेटिव करनी है. ठीक है, तो ये एक बार मैं फिर से करता हूं और cos इनवर्स x का आप लोगों को मैं असाइनमेंट दे रहा हूं. ठीक है डियर. तो इफ y is equal to sin inverse x under the conditions given, since it is a 1 on 2 function, inverse can be defined. तो x is equal to sin y, उसका inverse हमने डिफाइन किया. इसके डेरिवेटिव किया हमने sin with respect to y. ध्यान देना, तो sin y की डेरिवेटिव क्या है? cos y. That is equal to plus minus square root of cos square y, that is plus minus square root of 1 minus sin square y, plus minus square root of 1 minus x square. अब ये प्लस है या माइनस वो डिसीजन मुझे लेना था, वो हम क्वाड्रेंट सिस्टम पे लेते हैं. तो ये माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2 फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है. ये दो क्वाड्रेंट आते हैं. ये दोनों क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है. एज ए रिजल्ट ये प्लस माइनस में हमने प्लस को सिलेक्ट किया. ठीक है, कॉस वाई क्या होता है? पॉजिटिव. देयरफॉर वी हैव सिलेक्टेड द पॉजिटिव आंसर. तो यहां पे देख लो मैंने सिर्फ पॉजिटिव लिखा है. ये डेफिनेशन देने के बाद डायरेक्टली हमको dy बाई dx की वैल्यू 1 अपॉन dx बाई dy लिखना है और dx बाई dy की वैल्यू जो यहाँ पे आपने लिखा है वो कॉपी करके लिखना है. अब अगर साइन के जगह कॉस रहता तो आप x इक्वल टू कॉस वाई लिखते. dx अपॉन dy में क्या मिलता? माइनस कॉस वाई माइनस साइन वाई. और क्वाड्रेंट आपका 0 टू पाई यानी कि फर्स्ट और सेकंड है. फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव होएगा, लेकिन यहाँ पे एक माइनस साइन रहेगा, उसके से आप माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना. यहाँ पे सिर्फ एक माइनस लेना है. लिखना यही है, साइन वाई इज पॉजिटिव इन 0 टू पाई फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, बट यहाँ पे माइनस साइन लेना. देन अगेन राइट दिस, आपको आ जाएगा आंसर. मैं असाइनमेंट दे रहा हूं, नहीं आएगा तो आई विल गिव यू द आंसर अगेन. तो क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देख लो. इफ y is equal to cos inverse x under the condition -1 less than or equal to x less than or equal to 1 minus 0 less than or equal to y less than or equal to pi, then show that or prove that dy by dx equal to -1 upon square root of 1 minus x square mod of x less than 1. ये प्रूफ आपको खुद से करना है बाय लुकिंग एट द प्रीवियस वन. ठीक है, काफी बच्चों ने वैसे ट्रिग्नोमेट्री का मुझे असाइनमेंट तो दिया, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे हैं जो अभी भी नालायकी कर रहे हैं, आंसर नहीं दे रहे, मतलब होमवर्क सबमिट नहीं कर रहे. थर्ड देख लीजिए. इफ y is equal to tan inverse x belongs to R minus pi by 2 less than y less than pi upon 2, both non-inclusive, then prove that dy upon dx is equal to 1 upon 1 plus x square. चलिए, ये बहुत आसान है एंड आई एम श्योर आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल सा होगा. सी द प्रूफ. Since y is equal to
tan inverse x under the condition x belongs to R minus pi by 2 less than y less than pi by 2. This implies, अब क्योंकि ये इस रेंज में, इस डोमेन में और रेंज में ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है, हम इसका इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं और इनवर्स होगा x इज इक्वल टू tan y. देखो पिछली बार जैसे किए थे हम सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे. अब इसकी डेरिवेटिव किससे करना चाहिए? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या करूं? Y. तो I'll be getting dx upon dy. tan y की डेरिवेटिव क्या होती है? X square Y. sec square y. अब ये स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है आपको. sec square y is going to be positive, no doubt. तो इसमें कुछ करना ही नहीं है. और sec square y होता है 1 plus tan square y, अगर आपको याद हो तो. और tan y की वैल्यू ऊपर से आप देख लीजिए 1 plus x square, सॉरी माय मिस्टेक. tan y की वैल्यू क्या है? x है. tan y की वैल्यू क्या है? x है. इट विल बिकम व्हाट? 1 plus x square. अब इसमें मुझे स्टेटमेंट कोई देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें कोई डिलेमा आया ही नहीं है. प्लस माइनस ऐसा दो चॉइस आया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए आपको कोई स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है. यू लीव इट एज इट इज. ओके डियर, अब आ जाओ. बाय डेफिनेशन dy अपॉन dx, इनवर्स का जो थियरम हमने किया था उसके हिसाब से ये आएगा 1 अपॉन dx अपॉन dy. That implies dy upon dx is equal to 1 upon 1 plus x square. Okay, as required. As required. Okay. तो मेरे ख्याल से इसमें तो किसी को डाउट आना नहीं चाहिए. बहुत ही आसान था, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं डोमेन और रेंज का, या आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम भी यूज नहीं करना था. So it should have been absolutely easy for you people. Okay? अभी दूसरा जो है वो मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दे देता हूं. ठीक है डियर? तो जो फोर्थ है स्टैंडर्ड डेरिवेशन, इफ y is equal to cot inverse x under the condition x belongs to R, 0 less than y less than pi, then show that या prove that dy upon dx is equal to क्या आएगा? -1 upon 1 plus x square. ये आपको एज एन असाइनमेंट करना है. ठीक है? नाउ लेट्स सी द फिफ्थ वन. इफ y is equal to, चलिए मैं ये कर देता हूं, cosec inverse x for mod of x greater than or equal to 1, mod of x greater than or equal to 1, minus pi by 2 less than or equal to y less than or equal to pi upon 2, but y is not equal to 0, then prove that, okay, that dy upon dx is equal to -1 upon x under root of x square minus 1 for x greater than 1, that is equal to plus 1 upon x under root of x square minus 1 for x less than -1. अब इसके प्रूफ को हम ध्यान से देख लेते हैं. ठीक है? यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर द प्रूफ. ध्यान से देखते जाइए.
सिंस आपको दिया क्या है, y इज इक्वल टू cosec inverse x under the condition mod of x greater than or equal to 1 minus pi by 2 less than or equal to y less than or equal to plus pi by 2 and y not equal to 0. तो क्योंकि ये 1 onto फंक्शन है, आप इसका इनवर्स डिफाइन कर सकते हो, और इनवर्स आपके पास है x इज इक्वल टू cosec y. This implies, differentiating with respect to y, differentiating with respect to y, आपको dx अपॉन dy की वैल्यू मिलेगी माइनस cosec y into cot y, that is equal to minus cosec y bracket plus minus square root of cot square y. That means it is minus of plus minus cosec y square root of cosec square y minus 1. That means ये माइनस एक्स्ट्रा प्लस माइनस cosec y की वैल्यू कितनी होती है, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. राइट दिस सेंस में बात. चलिए यहां तक तो हम लोग को ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप किया है. x इक्वल टू कोसेक y डिफाइन किया इनवर्स के हिसाब से, उसकी डेरिवेटिव लिया विथ रिस्पेक्ट टू y, कोसेक y की डेरिवेटिव माइनस कोसेक y कॉट y, ये माइनस को जैसा तैसा रखा, कॉट y को स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर y लिखा, इसलिए प्लस माइनस साइन डाल दिया. तो माइनस ऑफ प्लस माइनस कोसेक y, कॉट स्क्वायर y को मैंने लिख दिया कोसेक स्क्वायर y माइनस 1, और कोसेक y की वैल्यू क्योंकि x है तो मुझे मिला माइनस ऑफ प्लस माइनस x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1. अब लेट अस सी, आपके पास है इन माइनस पाई बाई 2 लेस देन y लेस देन 0. ओके, माइनस पाई बाई 2 लेस देन y लेस देन 0, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में याद कीजिए कोसेक y और कॉट y are both negative. ठीक है डियर, कोसेक y और कॉट y दोनों ही क्या होते हैं, निगेटिव, और माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस. दिस इंप्लाइज कोसेक y इंटू कॉट y, द प्रोडक्ट, दो नेगेटिव नंबर के प्रोडक्ट क्या होंगे, इज पॉजिटिव. उसी तरह 0 लेस देन y लेस देन पाई बाई 2, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक y एंड कॉट y दोनों ही क्या है, आर बोथ पॉजिटिव, और प्लस इंटू प्लस भी क्या होगा, पॉजिटिव. तो कोसेक y डॉट कॉट y इज पॉजिटिव. ठीक है डियर, यानी कि आपको dx अपॉन dy की जो कोसेक y इंटू कॉट y जो प्रोडक्ट है वो आपको पॉजिटिव ही आना चाहिए. ठीक है ना, लेकिन ध्यान से पीछे जाके देखिए, आपको dx अपॉन dy क्या है, माइनस ऑफ कोसेक y इंटू कॉट y. अब कोसेक y कॉट y पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव,
आंसर शुड ऑलवेज बी नेगेटिव। ठीक है डियर, आपका आंसर हमेशा नेगेटिव आना चाहिए। इसका मतलब ये निकलता है दिस इंप्लाइज dx upon dy is equal to minus of x under root of x square minus 1 if x is greater than or equal to 1। अगर x पॉजिटिव है तो आंसर माइनस में लाने के लिए माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। एंड dx upon dy इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। तो अब मुझे अगर x नेगेटिव है, इफ x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1 तो इसका मतलब x नेगेटिव हो गया। मुझे आंसर नेगेटिव चाहिए तो ये नेगेटिव और ये स्क्वायर रूट क्योंकि डिफाइंड है पॉजिटिव। तो अब देख लो आंसर नेगेटिव है। x की वैल्यू नेगेटिव तो ये पूरा वैल्यू नेगेटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव जाएगी। तो यहाँ पे देख लो जब पॉजिटिव है तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव थी, लेकिन हमको पहले से डिसीजन लिया हुआ आंसर में माइनस साइन चाहिए इसलिए माइनस डाल दिया। अब ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है तो देयर इज नो नीड ऑफ पुटिंग एन एक्स्ट्रा माइनस साइन, क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा माइनस डाल दिया तो ये प्लस हो जाएगा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठना चाहिए। आई नो इट इज कंफ्यूजिंग बट प्लीज रिमेंबर ये स्क्वायर रूट जो है जो डिफाइंड है उसको हम पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं। आंसर नेगेटिव चाहिए। अब ध्यान से देख लो ये पॉजिटिव तो आंसर पॉजिटिव है। नेगेटिव लाने के लिए माइनस साइन डाला। इधर देख लो नेगेटिव और ये पॉजिटिव तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, हमको आंसर माइनस से चाहिए था तो वी हैव नॉट पुट एनी एडिशनल साइन। अब याद करो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, या बस कर देते हैं बाय डेफिनेशन। अब याद कीजिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं 1 अपॉन dx बाय dy। सो दिस इंप्लाइज dy अपॉन dx इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल लिए तो -1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 अंडर द कंडीशन x इज ग्रेटर देन 1। ये इक्वल टू साइन फिर से निकाल दिया। अगेन आई होप यू अंडरस्टैंड 1 minus 1 0 हो जाएगा एंड डिवीजन बाय 0 डज नॉट एग्जिस्ट। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इफ x इज लेस देन -1। ये है आपका आंसर। इक्वल टू साइन निकालने का रीजन मैं पहले ही 2-4 बार बता चुका हूं। एक बार फिर से पूरा ध्यान से देखिए। इफ y is equal to cosec inverse x, okay, under the condition mod of x is greater than or equal to 1, minus pi by 2 less than equal to y less than equal to pi by 2, y not equals to 0। तो ये 1 on 2 फंक्शन हो गया। इनवर्स डिफाइन कर सकते, इसके लिए मैंने लिखा x equal to cosec y। अब इसके डेरिवेटिव किया विथ रेस्पेक्ट टू y, dx upon dy equals to minus cosec y cot y। cot y को हमने स्क्वायर रूट में डाला तो प्लस माइनस साइन लिखे। cot स्क्वायर y को हमने लिख दिया cosec स्क्वायर y माइनस 1। cosec y की वैल्यू लिखा x तो हमें मिला माइनस ऑफ प्लस माइनस x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec y और cot y दोनों नेगेटिव होते हैं तो उनका प्रोडक्ट माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगेन cosec y cot y both are positive and plus into plus is again plus positive मिला। इसका मतलब कि dx upon dy should be a negative value। तो dx upon dy की वैल्यू माइनस x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 if x is positive, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आपके क्वेश्चन से लिया है, आपके स्टेटमेंट में दिया हुआ है सब चीज। और अगर x नेगेटिव है यानी कि लेस देन इक्वल टू -1 है तो इट विल बी x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। अगेन डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन क्या बोलता है, dy by dx इज 1 अपॉन dx अपॉन dy। तो dy by dx फर्स्ट केस में लिया -1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। देख लो इधर से इक्वल टू साइन निकालने का रीजन मैंने बताया। If x becomes 1 the denominator becomes 0 which is not
defined does not exist. And second case में when x is less than -1, इसका reciprocal 1 upon x root of x square minus 1. आपको क्या करना है, सिक्स्थ वन जो है exactly same principle follow करना है. If y is equal to sec inverse x under the condition mod x is greater than or equal to 1, 0 less than y equal to y less than or equal to pi, but y not equals to pi by 2, then prove that dy upon dx is, इसमें ये 1 upon x under root of x square minus 1 for x greater than 1, and it is minus 1 upon x under root of x square minus 1 for x less than minus 1. अभी किसी बच्चे ने मुझसे एक बार डाउट पूछा था कि सर कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए. तो देखो डियर, अगर x की वैल्यू आपको डिटरमाइन होती है, पता चलता है, तो आप डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, आप दो में से कोई एक फॉर्मूला यूज करोगे. अगर x ग्रेटर देन 1 है तो ये फॉर्मूला, लेस देन -1 है तो ये फॉर्मूला. लेकिन अगर अननोन है तो एग्जाम में अभी तक मेरे पास ऐसा कोई क्वेश्चन मिला नहीं मुझे, तो वहां पे मैं बता नहीं सकता हूं कि टेक्स्ट बुक में एज पर रूल क्या होना चाहिए, बट हमको दोनों आंसर देना चाहिए. एज पर मैथमेटिकल रूल हमें दोनों आंसर देना चाहिए, बट आपके टेक्स्ट बुक में कोई ऐसा एग्जांपल अभी तक मुझे मिला नहीं. इफ वी एवर कम अक्रॉस दैट, विल सी व्हाट वी हैव टू डू. वैसे मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव रास्ता भी है, लेकिन अब थियरम में नहीं बता सकता हूं, तो जब न्यूमेरिकल में करूंगा तो वहां पे ऑल्टरनेटिव वे भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि अगर ये वैल्यू नहीं दिया है तो क्या करना. ठीक है डियर, तो फिलहाल आज के लिए मैं इतना ही कर रहा हूं, और ये आप लोगों को मैं असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूं. 6th वन मैं 3 स्टैंडर्ड डेरिवेशंस आप लोगों के लिए मैंने असाइनमेंट दिया हूं. तो आई एज्यूम कि अगले लेक्चर में जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये 3 आप लोग मुझे सॉल्व करके दोगे. ठीक है डियर, चलिए, सो बाय फॉर टुडे, टेक केयर.